Hello guys, welcome to my channel. In this video, I'm starting with a new area of indirect taxation, that is custom law, and this content is purely applicable for CMA Inter. No? So let's get started. Its introduction. The levy of custom duty was organized through legislation during the British period. Constitutional provision. Entry 83 of the Union List of the 7th Schedule to the Constitution of India is empowered to levy custom duty by the central government of India. In earlier days, it was a customary for a trader who brings the goods to a particular kingdom to offer gifts to the king for allowing him to sell his goods in that kingdom. अब इसमें क्या कह रहा है कि अर्लियर डेज में एक कस्टमरी प्रैक्टिस होती थी कि किसी भी ट्रेडर को अगर किसी किंगडम में आके कुछ सेल आउट करना है, अपना सामान बेचना है, गुड्स बेचने हैं, तो उन्हें उस किंगडम के किंग को गिफ्ट्स ऑफर करने पड़ेंगे। और मॉडर्न डेज़ में यही गिफ्ट्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ कस्टम ड्यूटी। सो नाउ in modern days, these gifts are collected by the government of India in the form of custom duty from the importer who imports the goods from a country outside India and from an exporter who exports the goods to a country outside India. Now, the Custom Act was enacted by Parliament in the year 1962. The central government of India has power to make rules under section 156 of Custom Act 1962 and also has power to issue notifications from time to time for the purpose of smooth functioning and effective administration of the act. As per section 157 of the Custom Act 1962, the Central Board of Excise and Custom, जो अब CBIC हो गया है बिकॉज कि GST आ गया है, तो इट इज़ नाउ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैज़ बीन empowered to make regulations consistent with provisions of the act, and the Commissioner of Customs has the power to issue public notices which are so called trade notices. Okay. Now section 1, short title, extent and commencement. This act may be called the Customs Act 1962. It extends to whole of India और whole of India पे extend होता है ये, and with effect of 29 March 2018 and save as otherwise provided in this act, it applies also to any offence or contravention thereunder committed outside India by any person. Okay. It shall come into force on such date as the CG, मतलब central government, may by notification in the official gazette appoint. Okay, this is short title, extent and commencement, that is section 1. Now CBIC, it is defined in section 2 clause 6 of Custom Act 1962 and with effect from 29 March 2018, the Central Board of Excise and Custom, the word Central Board of Indirect Taxes and Customs shall be substituted. अब वही मैंने अभी आपको बोला GST के आने से अब ये रिप्लेस हो गया है. नाउ इट इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. जो भी आपकी कस्टम्स से रिलेटेड GST से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होती है वो इस साइट पे अवेलेबल होती है, एंड दिस इज CBIC साइट. ओके. नाउ let's get started with some definitions which is relevant for further clarification on this law. First is adjudicating authority. As per section 2 clause 1 of Customs Act 1962, adjudicating authority means any authority competent to pass any order or decision under this act but doesn't include Central Board of Excise and Customs, Commissioner of Customs,
or Central Excise and Service Tax Appellate Tribunal. Now second is bill of export. As per section 2 clause 5 of the Custom Act 1962, the exporter of any goods shall make entry thereof by presenting to the proper officer, in case of goods to be exported by land, a bill of export in prescribed form. अब ये क्या कह रहा है कि इन कस्टम एक्ट 1962 कोई भी एक्सपोर्टर है गुड्स का, वो एंट्री करेगा बाय प्रेजेंटिंग टू द प्रॉपर ऑफिसर. कोई भी गुड्स उसको एक्सपोर्ट करना है आइदर बाय लैंड, ठीक है, और वो चीज़ क्या हो गया, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, वो जो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में है. जैसे हम बोले शिपिंग बिल होता है इन केस ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड इन अ वेसल और एयरक्राफ्ट. Now board. As per section 2 clause 6 of Customs Act, board means the Central Board of Indirect Taxes and Customs constituted under Central Board of Revenue Act 1963. Now coastal goods. As per section 2 clause 7 of Customs Act, the term coastal goods means goods other than imported goods transported in a vessel from one part in India to another. यहाँ देख रहे हैं चेन्नई पोर्ट से गुड्स ट्रांसपोर्टेड टू मुंबई पोर्ट, तो ये कोस्टल गुड्स हो गए. नाउ फिफ्थ इज कन्वेंस. एज पर सेक्शन 2 clause 9 ऑफ कस्टम्स एक्ट, कन्वेंस इंक्लूड्स अब इसमें क्या क्या कन्वेंस में क्या आता है, वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल जिसके थ्रू गुड्स आ रहे हैं. एंड द स्पेसिफिक टर्म्स आर वेसल, वेसल हम कहेंगे सी के थ्रू जो आ रहा है, एयरक्राफ्ट कहेंगे अगर वो एयर के थ्रू आ रहा है, एंड व्हीकल कहेंगे अगर वो लैंड के थ्रू आ रहा है. नाउ सिक्स्थ इज कस्टम एरिया. एज पर सेक्शन 2 clause 11 of Customs Act, custom area means area of a custom station and includes any area in which imported goods or exported goods are ordinarily kept before clearance by custom authority. custom authorities के क्लियर होने से पहले जहाँ जो भी इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं, ये एक्सपोर्टेड गुड्स होते हैं, जहाँ रखे जाते हैं उस एरिया को कस्टम एरिया कहते हैं. अब क्लियरेंस भी आपकी दो तरीके की होती है, जैसे होम कंजम्पशन क्लियरेंस होती है, वेयर हाउसिंग होती है. अब होम कंजम्पशन में आप ड्यूटी पे कर देते हैं गुड्स के लिए और वहाँ से क्लियर कर लेते हैं. एंड सेकेंड आपकी होती है वेयर हाउसिंग. आप उस टाइम पे सारे गुड्स रिलीज़ नहीं करवाते हैं, कुछ वेयर हाउसिंग के लिए रख देते हैं, एंड जब आप ड्यूटी पे करेंगे तब वो क्लियर माने जाएंगे. मतलब उसमें अथॉरिटी की वो आपको परमिशन चाहिए होंगी, सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने होंगे ड्यूटी पे करके, एंड देन वो गुड्स क्लियर माने जाएंगे एज़ पर योर रिक्वायरमेंट. वो तब तक वेयर हाउसिंग में रखे रहेंगे. अब वेयर हाउसिंग कैसी भी हो सकती है, गवर्नमेंट के थ्रू भी है, वो प्राइवेट वेयर हाउसिंग भी अवेलेबल होती है. नाउ सेवेंथ इज कस्टम स्टेशन. एज टू सेक्शन 2 clause 13 of Custom Acts, custom station means any custom port, कस्टम एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन. अब मैं जब भी कस्टम स्टेशन की बात करूँ तो इसमें क्या तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कोई भी कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन. नाउ ड्यूटीएबल गुड्स. एज पर सेक्शन 2 clause 14 ऑफ कस्टम्स एक्ट, द टर्म इज डिफाइंड टू मीन एनी गुड्स विच आर चार्जेबल टू ड्यूटी, जिस पे ड्यूटी लगनी है, एंड ऑन विच ड्यूटी हैज़ नॉट बीन पेड, जिससे अभी ड्यूटी पे नहीं हुई है. इट मीन्स टू से दैट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट और गुड शुड फाइंड अ मेंशन इन द कस्टम टैरिफ एक्ट. अब कस्टम टैरिफ एक्ट में आपके सारे रेट्स नाम्स वगैरह दे रहे हैं, किस गुड्स पे क्या लगेगा, कैसे है, वो आपका एक सेपरेट एक्ट बना हुआ है उसके लिए, दैट इज़ कस्टम टैरिफ एक्ट. ओके. नाउ नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ गुड्स. एज पर सेक्शन 2 clause 22 of Customs Act, the term goods includes vessels, aircrafts and vehicles. ठीक है, ये तो आपको पता है, वेसल्स, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स. नेक्स्ट इज स्टोर्स. अब स्टोर्स क्या होते हैं, अब कोई भी आपका शिपमेंट आ रहा है तो उसमें आपके गुड्स तो आ रहे हैं, बट लेकिन अब उसमें आपको और भी चीज़ें चाहिए होंगी, फ्यूल चाहिए होगा. ऑफकोर्स आप बीच में रुक के कहीं फ्यूल तो डलवा नहीं सकते, तो और भी सब चीज़ें जो नेसेसरी चीज़ें आपको ट्रैवल
करते हुए चाहिए होगी, मतलब इंपोर्ट या कुछ भी एक्सपोर्ट करते हुए चाहिए होंगी नेसेसरली, तो वो सब चीज़ें आपकी स्टोर्स में आ जाती हैं। सी बैगेज, आप शॉपिंग वॉपिंग करते हैं वो लेके आते हैं, दैट इज़ बैगेज। नेक्स्ट इज करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। 1 2 3 4, ये 4 चीज़ें तो कवर हैं, और बाद में उन्होंने कोई भी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, गुड्स के अंदर कवर कर लिया। नाउ 10th इज इम्पोर्ट रिपोर्ट। एज पर सेक्शन 2 clause 24 of Customs Act 1962, the person in charge of a vehicle carrying imported goods deliver to the proper officer an import report within 12 hours after its arrival in custom station in the prescribed form। अभी क्या कह रहा है, एज पर सेक्शन 2 clause 24 ऑफ कस्टम एक्ट 1962, जो भी इंचार्ज होगा पर्सन व्हीकल का, मेंशन व्हीकल का, कोई भी इंपोर्टेड गुड्स कैरी कर रहा है, वो प्रॉपर ऑफिसर को देगा एक इंपोर्ट रिपोर्ट। कब देगा, विद इन 12 आवर्स आफ्टर इट्स अराइवल इन कस्टम स्टेशन। कस्टम स्टेशन के 12 घंटे अराइवल, मतलब कस्टम स्टेशन के अराइवल होने पे के 12 घंटे के अंदर, इन द एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है इसका। अब वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में पर्सन इंचार्ज जो है, इन केस ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट, पर्सन इंचार्ज डिलीवर टू द प्रॉपर ऑफिसर इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट IGM। और इन्हें अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग मैंडेटरी हो गई है इसमें, इन केस में वेसल में और एयरक्राफ्ट में, विद इफेक्ट ऑन 10/5/2013। अब मैं इसका एग्जांपल दूं कि आपको ये इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट में क्या चीज़ आती है। कोई भी शिपिंग डिटेल आपकी, उसकी जो भी आप ला रहे हैं, डिस्क्रिप्शन गुड्स का, शिपर की डिटेल्स, नंबर हैं, काइंड ऑफ पैकेजेस, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती है। ठीक है, किस मतलब ये सारी चीज़ें आपकी, जो भी आप गुड्स ला रहे हैं उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स मेंशन की होती हैं उसके अंदर। नाउ बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग, जैसे हाँ इसमें ये भी है कि आपका जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट में बिल ऑफ लेडिंग भी हो, बिल ऑफ लेडिंग का नंबर, या एयरवे से ला रहे हैं तो एयरवे बिल का डिटेल, तो ये सभी चीज़ें इसमें आपकी इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट में मेंशन होती हैं। नाउ विद इफेक्ट ऑफ 29 मार्च 2018, for words import manifest and export manifest, wherever they occur, the words arrival manifest or import manifest and departure manifest or export manifest shall respectively be substituted, and such other consequential amendments as the rules of grammar may require shall also be made। अब जहाँ पे ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट होगा वहाँ आप अराइवल मैनिफेस्ट भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, और जहाँ एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट होगा वहाँ हम डिपार्चर मैनिफेस्ट भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, और कोई भी नेसेसरी अमेंडमेंट्स रिक्वायर होंगी वो होंगी। ठीक है, एंड सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन केस द पर्सन इन चार्ज shall be liable to pay penalty not exceeding 50,000। okay, now time limit for submission of arrival manifest और import report। अब कब अराइवल मैनिफेस्ट का टाइम लिमिट क्या है सबमिशन करने का। अभी मैंने पढ़ा अराइवल मैनिफेस्ट मतलब आपका इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट कह सकते हो। एज पर सेक्शन 30 subsection 1 of Custom Act 1962, an arrival manifest by presenting electronically prior to the arrival of vessel or aircraft as the case may be। वेसल है, एयरक्राफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगा प्रायर टू द अराइवल ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट, एंड इन केस ऑफ व्हीकल के केस में इंपोर्ट रिपोर्ट होगी विद इन 12 आवर्स आफ्टर इट्स अराइवल एंड कस्टम स्टेशन, और एट द डिस्क्रिशन ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम, ये डिक्लेरेशन मे बी फाइल्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ अराइवल ऑफ द वेसल और एयरक्राफ्ट। 24 आवर्स का टाइम लिमिट मिल सकता है। ओके, सो दिस इज़ अ स्मॉल इंट्रोडक्शन एंड
a basic concepts over custom law, and this is part 1 related to basic concepts, and this content is wholly applicable for CMA Inter as I said earlier. So if you like the video, you can like the same and subscribe the channel. Thank you.